Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, only few days are left for our IBPS RRB preliminary examination. Now, what should be our strategy? Our strategy is slow and steady wins the race. That means if we remain consistent and persistent and don't come into panic situation, we can win over. Now, in RRB Prem, there are only two papers, that is quant and reasoning, and both are scoring. So our effort should be to achieve conceptual clarity so that we can score as high as possible. For this, you must attempt at least 9 mock tests during remaining period. In yesterday's video also I told you you should attempt the mock test on alternate basis. Now what is the meaning of this? Say you have attempted one mock test yesterday. You need not attempt the mock test today. The next mock test will be attempted tomorrow. But if you have not attempted the mock test yesterday, you should attempt it today. After attempting the mock test, you should not bother what are your scores. Some people are unduly worried about their scores. The purpose of mock test is identification of your weak areas. Means the type of question which you could not solve or those have been solved but they are not correct. These are your weaknesses. So identify your weakness, work over your weakness and improve. For your convenience, I have provided link of a very good mock test in description and comment column. Thousands of our subscribers have already using it. They are improving on day-to-day basis their performance. They are sharing with me through screenshot. I am sharing with you on my wall. So if you have not taken the mock test till now, subscribe this mock test. It's a very good mock test, exam level mock test, helping you to identify your weaknesses so that you can focus on those areas. Because identification and focusing on weak areas is the most important part of your study. I have seen some people are wasting a lot of time only attempting mock test throughout the day. It only gives you fatigue and tension. Practice is only useful when you are conceptually clear. So your main focus should be to become conceptually clear, because if you don't understand any concept, whatever number of time you attempt the question, you will not be able to solve that type of question. So reading elementary textbooks or fundamental topics is very necessary along with mock test. Mock test is only showing you the path, but the real path is reading from textbook, and NCERT and CBSE level books are the best source from where you can improve your quant. Similarly, in reasoning, you should focus on type of questions in reasoning where you are weak. If you can focus and improve, naturally you will score high. So focus on study. Very few days are left, and if we utilize this time in a systematic manner, we are bound to clear this first leg of examination, and then you can focus on mains. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। IBPS RRB के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम दिन रह गए हैं, और मैंने कल भी वीडियो में आपको ये बताया था कि अब हमें अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट करना है। अच्छे मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट कॉलम में दिया है। हमारे हज़ारों सब्सक्राइबर्स ने ऑलरेडी ये सब्सक्राइब कर लिया। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी आज इसको सब्सक्राइब कर लें। जो मॉक टेस्ट है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अल्टरनेट डे पे आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है।
जिन लोगों ने कल मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया उनको आज मॉक टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने कल मॉक टेस्ट नहीं किया था वो आज मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किएंगे। जिन्होंने कल मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया था वो अब कल मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे। अगला मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद आपने इसका सोल्यूशन देखना है, इसका एनालिसिस देखना है और देखना है कौन से क्वेश्चन है जो आपके गलत हो रहे हैं। ये जो प्रोसेस है अपनी कमियों को ढूंढना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कई लोग बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते जाते हैं मगर वो बेसिक टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते, तो उसका फ़ायदा नहीं होता। खाली प्रैक्टिस से नंबर नहीं आएंगे। अगर कोई चीज़ आपकी कमज़ोर है और आपने उसको इम्प्रूव ही नहीं किया तो प्रैक्टिस करने से वो ठीक नहीं हो जाएगी। ठीक होगी जब हम उस चीज़ को पढ़ेंगे, जब हम उस कंसेप्ट को समझेंगे और समझने के बाद फिर अगर हम मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे तो हम देखेंगे हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। इस फार्मूले को हज़ारों लोगों ने अपनाया है और उनको निश्चित तौर से फ़ायदा हुआ है और आज वो एग्ज़ाम पास करके बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनीज़ में नौकरी ले चुके हैं। आपको भी मैं ये फार्मूला बता रहा हूँ, आप में से काफ़ी लोगों ने इसको आजमा भी लिया है और उनमें निश्चित तौर पे जो इम्प्रूवमेंट है नज़र आ रही है। तो आपको भी मेरी सलाह ये है कि ये मत सोचिए कि अब बहुत कम दिन रह गए, अब क्या कर सकेंगे। बिल्कुल कर सकेंगे। हर दिन, हर क्षण महत्वपूर्ण है। जैसे कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो जो आदमी स्टडी है वो रेस जीतता है। स्लो हो सकता है, स्लो होने से फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोगों को लगता है मेरे कम नंबर आ रहे हैं, क्या मैं कर पाऊँगा? बिल्कुल कर पाएंगे। कर तब पाएंगे जब आप अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ते हैं, आप लगे रहते हैं, नियमित रूप से अपने में सुधार करते हैं। और अगर आप सुधार करते जाएंगे तो वो दिन निश्चित आएगा जब आपका स्कोर एक अच्छे स्कोर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कट ऑफ से अच्छी लीड बना ली है, बहुत ऊपर निकल गए हैं। वो इसीलिए निकल गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने कंसेप्ट क्लियर करते चले जा रहे हैं। आप भी अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर ही जोर दीजिए। एनसीईआरटी की बुक्स, सीबीएसई की स्कूल लेवल की बुक्स बेस्ट सोर्स होता है जहां आप क्वांट के अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। पर अपने कमी को ढूंढना ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। काफ़ी लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको लगता है हमें तो ये आता है, सब कुछ आसान है। एग्ज़ाम में जाते हैं नहीं कर पाते क्योंकि वो अपनी कमी नहीं ढूंढ पाते हैं। मॉक टेस्ट का यही महत्व है कि आप अपनी कमी ढूंढ पाएंगे। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट कॉलम में दिया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट है। इसी तरीके से जो रीजनिंग है, रीजनिंग में आप ये आइडेंटिफाई करिए किस तरह की रीजनिंग के क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। उस तरह की रीजनिंग कैसे अटैम्प्ट करनी है, इस कंसेप्ट को समझिए। इसके लिए दुनिया भर की बुक्स अवेलेबल है। गूगल सर्च से आसानी से आपको उस टॉपिक वाइज बुक मिल जाएगी। उसको देखिए, उसको पढ़िए, कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करिए। और टाइम कम है, अपना लगातार तैयारी के ऊपर ही ध्यान दीजिए। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।